what are the conditions? What are the conditions of consumer's equilibrium? The most important condition is the slope of indifference curve, MRS, is equal to the price ratio, which is the same. Price ratio is also the market rate of exchange. So consumer is said to be in equilibrium when the slope of indifference curve is equal to the slope of budget line. And MRS should be equal to the price ratio. Price ratio और MRE same होते हैं. Numerically. They are two different terms, but numerically they are always same. So condition 1, MRS should be equal to the price ratio. तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये मतलब ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन दे आर नॉट इक्वल. हाउ कैन यू बी श्योर कि इफ दे आर नॉट इक्वल देन यू आर नॉट अटेनिंग इक्विलिब्रियम और यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. तो डिसइक्विलिब्रियम को हमें एक्सप्लेन करना होता है. What happens when MRS XY is greater than PX upon PY? इसको MRS को ऐसे लिखते हैं XY को ऐसे लिखते हैं units of Y sacrificed for an additional unit of good X. It means that to obtain one more unit of good X, पेन के लिए initially the consumer is willing to sacrifice more units of Y. आप 20 पेंसिल्स देने के लिए तैयार थे as compared to what is required in the market. मार्केट की रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 4 पेंसिल की थी. आप 20 देने के लिए क्यों तैयार थे? क्योंकि आपके पास पेन है ही नहीं और पेंसिल बहुत सारी हैं. It induces the consumer to buy more of X. Why? Because X is more important for you than Y. As a result, as you consume more and more units of good X, MRS falls and continue to fall till it becomes equal to the price ratio and equilibrium is established. In other words, if MRS is greater than price ratio, it means the rate at which the consumer is willing to sacrifice to obtain one more unit of X is more than the rate at which the consumer has to sacrifice. Has to का मतलब होता है मार्केट रेट के हिसाब से आपको कितने सैक्रिफाइस करने हैं? 4. आप विलिंग हो 10, 6, एनीथिंग मोर देन द प्राइस रेशियो, तो यू विल कंटिन्यू टू कंज्यूम मोर, क्योंकि आपकी विलिंगनेस हाई इसलिए है क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत है, आपको उससे सैटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है. What happens when MRS is less than the price ratio? It means that to obtain one more unit of X, the consumer is willing to sacrifice less units of Y. आप कह रहे हो मैं 3 पेंसिल दूंगी एक पेन के लिए, लेस देन व्हाट द मार्केट रिक्वायर्स. इट इंड्यूसेस द कंज्यूमर टू बाय लेस. तो मतलब क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है तो फिर आप X कंज्यूम करेंगे. योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस इज लेस देन व्हाट द मार्केट रिक्वायर्स. तो मतलब आपको उसकी कम सेटिस्फैक्शन मिल रही है. यू विल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ गुड X. As you reduce the consumption of good X, as we consume more and more units of good X, MRS falls. As we consume less and less units of good X, अब हम कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो MRS बढ़ जाएगा. Yes or no? तो इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा. MRS rises till it becomes equal to the ratio of prices and equilibrium is established. Condition 1 clear? Condition 2, law of DMU must apply. Law of DMU must apply और MRS continuously falls. Important है, MRS continuously falls. Diminishing MRS होना चाहिए. अब diminishing MRS is because of diminishing marginal utility. वो तो law पे ही based है. कह रहे ये होना जरूरी है. कह रहे ऐसा क्यों? कह रहे तभी तो हम श्योर होंगे कि as we consume more, the willingness to sacrifice will fall. Because the additional satisfaction derived from next unit of X would be less than what we derived in the previous unit. Law of DMU must prevail. MRS should fall continuously. Reason? It will give convex shape to the indifference curve. Convexity ensures unique equilibrium. क्योंकि अब हम डायग्रामेटिकली बातें शुरू कर रहे हैं. पहले मैं बस आपको चाहता था कि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए. कॉन्सेप्ट आई होप समझ आ चुका है कि विलिंगनेस और प्राइस रेशियो इक्वल होंगे तो आप इक्विलिब्रियम पे हैं. अब ग्राफिकली विजुअलाइज करना स्टार्ट करते हैं कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन. मतलब वो दोनों टैंजेंट होने चाहिए. सर ये क्या बोल दिया आपने? वो दोनों टैंजेंट होने चाहिए. टैंजेंट तो वह
स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल तभी होगी जब वो दोनों टेंजेंट है। वो दोनों, सर ये तो हम गलियां छोड़ा है, ये तो बहुत पीछे छोड़ा है हम, टेंजेंट ये सब कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है। दोनों की स्लोप सेम होगी। अगर कॉन्वेक्स शेप है ना, अगर कॉन्वेक्स शेप है तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टेंजेंट होगा। टेंजेंट 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 बॉल है किसी के पास, या बॉल नहीं है हमारे पास, ये दिखाना कैंडल स्टैंड। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल ध्यान से देखना, स्केल देना कोई भी, हाँ 2 स्केल दे दो, 2 स्केल दे दो स्कूल। अब ये स्केल, ये स्केल, ये पूरे के पूरे टेंजेंट है एक दूसरे पे, ये पूरे, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कितने हैं इनमें, इनफाइनाइट। मतलब तो टेंजेंसी का मतलब समझ आ गया ना कि जहां वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन नहीं, मतलब दोनों की स्लोप सेम है, ऐसे भी सेम है, ऐसे भी सेम है, ऐसे भी सेम है, बट ऐसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कितना है, एक ही है ना, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ओके, अगर स्ट्रेट लाइन होगी, दोनों ही स्ट्रेट लाइन होती, इंडिफरेंस कर्व भी और बजट लाइन भी, अगर दोनों स्ट्रेट लाइन होती तो इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसीज हो सकते थे, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन एट मोर देन 1 पॉइंट, तो फिर यूनिक इक्विलिब्रियम नहीं होता। लेकिन अगर कर्व है, अगर कर्व है तो जो मर्जी हो जाए, एक ही तो पॉइंट होगा टेंजेंसी का। इस पे अगर दिख रहा है ऑनलाइन, ये अगर ऐसे कर्व है तो जो मर्जी हो, अगर ये रोटेट भी होगा एक टाइम पे तो एक ही पॉइंट टच कर रहा होगा। तो डिमिनिशिंग एमआरएस इंश्योर्स कॉन्वेक्स शेप, डिमिनिशिंग एमआरएस इंश्योर्स कॉन्वेक्स शेप, तो कॉन्वेक्स शेप की वजह से बजट लाइन पे सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आएगा। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन होती तो मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसीज हो सकते थे। अब आपको विजुलाइज करा देता हूं। अब ये एक स्लोप है, और अगर इसकी स्लोप भी यही होती तो अगर ये ओवरलैप कर जाते, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये बजट लाइन है, अगर ये ओवरलैप कर जाते, ये इंडिफरेंस कर्व, ये बजट लाइन अगर ऐसे होते और ये अगर ओवरलैप कर जाते तो क्या यूनिक इक्विलिब्रियम होता? नहीं। लेकिन अगर बजट लाइन ऐसी है और इंडिफरेंस कर्व ऐसा है, अभी मतलब उसको बना देंगे, फिर इंडिफरेंस कर्व ऐसा कॉन्वेक्स होता है तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यूनिक होगा। तो डिमिनिशिंग एमआरएस ensures this, diminishing MRS so it is important condition, it is an important condition that MRS should be diminishing. Why is it so important? Because diminishing MRS gives convex shape to the indifference curve, which ensures that there will be a unique equilibrium. The second condition of for consumers equilibrium is that MRS must be diminishing at the point of equilibrium, that is indifference curve must be convex to the origin. Unless MRS continuously falls, equilibrium cannot be established. तो ये जो मैं खेल रहा था, ये बताने के लिए कि कन्वेक्सिटी कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कॉन्वेक्स होगा तो देयर विल बी ओनली 1 पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कॉन्वेक्स नहीं होगा तो देयर में बी मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फिर कंक्लूड नहीं कर पाएंगे आप कि विच इज द एक्चुअल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, तो सेम चीज को जो था ना कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, आगे आ जाएगा, दैट इज द बजट लाइन इज द इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। कंडीशंस, MRS is equal to the price ratio, MRS continuously falls। कंडीशन में किसी को कोई भी डाउट? फर्स्ट स्टेप वाज मीनिंग, सेकंड इज द कंडीशन, थर्ड वुड बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई एम मूविंग ऑन टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नाउ। अभी पूरा ग्राफ बना के दिखाऊंगा, लेकिन माय क्वेश्चन इज, आर द कंडीशंस परफेक्टली क्लियर?
Okay. Third step, graphical representation.